सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुनाह जो है ना, गुनाह ये बेचैन कर देता है, फिर गुनाह से बरकत उड़ जाती है। तो बंदा गुनाह करता है ना, इससे बरकत चली जाती है। When you commit sins, the blessing and barakah is removed from your life. अब नोट कर लें, उम्र में बरकत है? Take note, is there any barakat or blessing left in life? क्या खाने में बरकत है? Is there any blessing in food left? क्या आपको घर में बरकत नजर आ रही है? Is there any blessing in homes these days? क्या आपको रिस्क में बरकत नजर आ रही है? Do you see blessings of growth in sustenance? हर तरफ आपको बेबरकती नजर आ रही होगी। Everywhere you see, there's no blessing. ये गुनाहों की नहुसत है। This is due to the sins. गुनाहों का ये वबाल है जो बंदे को मिलता है। This is the punishment of committing sins which comes down upon people. फिर गुनाह करने से नेकी की तौफीक चली जाती है। And when you keep on committing sins, then you don't get chance to do the good deeds. यानी कई लोग ऐसे हैं जो पहले नेकियां करते थे, Many people who used to do the good deeds before, मगर उनके बाद गुनाहों ने इनको नेकियों से दूर कर दिया। but because of some of the sins they committed, they don't have chance to do the good. वो कहेंगे पहले मैं यूं करता था, पहले मैं यूं करता था, पहले मैं यूं करता था, अब क्यों नहीं करते भाई? They'll tell you the stories that I used to do this and I used to do that, you know, a lot of good deeds, but why can't you do now? तो नेकी की तौफीक छीन जाना है ना, ये अल्लाह की नाफरमानी से होता है, याद रखिएगा। Opportunity of doing the good deeds is snatched away. कोई ऐसा गुनाह होता है, कोई रियाकारी हो गई होती है, कोई गीबत हो गई होती है, कोई बदगुमानी हो गई होती है, कोई ऐसे अल्लाह की नाफरमानी के काम वो करता रहता है जिससे उसको मोहलत मिल रही होती है, तो मान जा मान जा मान जा, वो नहीं मानता ना, उसे नेकी की तौफीक छीन ली जाती है। Some sins we must have committed because of which the opportunity of doing the good deeds is snatched away. नेकी की तौफीक चला जाना ये कितनी बड़ा गुनाह का नुकसान है, ये बताइए। What a loss if the opportunity of doing good deeds is no more there with us. फिर ऐसा होता है कि जब गुनाह करता रहता है ना, तो उसको गुनाह के सिपुर्द कर दिया जाता है, वो फिर गुनाह का आदी हो जाता है। One who keeps on committing sins, he is given to the life of sins. I mean, the sins will take him over. तो ये भी गुनाह का बहुत बड़ा नुकसान है कि गुनाह का आदी हो जाना। This is a great loss that a person becomes habitual with sinning. फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि गुनाह करते करते ऐसा अजीब व गरीब उसका हाल हो जाता है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। Then a time comes in his life because he commits so many sins that his dua is never accepted. यानी आपको लगेगा कि यार गुनाह से दुआ का कबूल ना होने का क्या ताल्लुक है? You might think what relationship, non-acceptance of dua got with sins. Yes, there is a relationship. यानी हदीस में यह मजमून मौजूद है कि अगर तुम मुस्तजाबु दावत बनना चाहते हो तो रिस्क हलाल हासिल करो। It is mentioned in Hadith Mubarakah that if you want all your duas to be accepted, then struggle towards the halal sustenance. यानी जो हराम जिसके पेट में हो उसकी दुआ कबूल नहीं होती। One in whose stomach is haram, meaning he has consumed haram food, his dua is never accepted. यानी नेकी की दावत छोड़ने वालों के लिए भी ये एक वबाल है कि उन पर जब अल्लाह ताला की तरफ से अजाब और गजब नाजिल होता है तो अब नेक लोग उनके लिए दुआ करते हैं, उन नेक लोगों की दुआ भी उनके हक में कबूल नहीं होती। Those who leave this duty of inviting people towards the path of goodness, then even if pious people make dua for such people, their dua too is not accepted. फिर गुनाह का एक और नुकसान ये है कि शर्म चली जाती है, आदमी की हया और शर्म मर जाती है। Another loss of sinning is that the shame is gone from the person. He becomes shameless. बेशर्म हो जाता है वो। हदीस पाक में है कि जिसमें हया नहीं उसका जो चीज चाहे करे। The haya is that, a shame which you feel from the point of religion. If that is gone, then it's mentioned in Hadith Mubarakah, then you do whatever you want to do. आपको नहीं लगता अगर हम ओवरऑल नोट करें हमारी हया चली गई है? Don't you think if we observe ourselves overall that our haya, that Islamic shame is gone away? यानी हमारे घर में देखें, हमारे बाजारों में देखें, खुद हमारी फैमिलीज में देखें, हमारे घर बार में देखें, खुद हमारी अपनी जात में अगर हम देखें, आपको नहीं लगता कि यार हया वाला ऐसा नहीं होता? यानी जिसमें शर्म हो, जिसमें हया हो, वो ऐसा नहीं होता जैसा मैं हूँ। शर्म हया वाला तो कुछ और होता है। आपको नहीं लगता ऐसा यार? Look in your homes, at your businesses, at your workplace. Don't you feel that Islamic modesty is gone?
a person who possesses modesty, is his condition not different than our condition? फिर गुनाह का नुकसान कि गुनाह से ईमान की बर्बादी का खौफ है. And a big loss that a person who commits sins, there's possibility that his iman might be destroyed. कि गुनाह से इंसान का ईमान बर्बाद हो सकता है और कयामत के रोज का अजाब, आखिरत का अजाब, अल्लाह का गजब, शैतान का कब्जा, शैतान का शिकंजा, बिल्कुल शैतान कब्जे में ले लेता है उसको. यानी इतने नुकसान आते हैं गुनाह के, इतने नुकसान आते हैं. अरे किसको मतलब बेवकूफ आदमी है जो गुनाह करता है. गुनाह करने वाला वो अक्लमंद आदमी नहीं होता, भले कैसा पढ़ा लिखा आदमी है, कितना पैसे वाला आदमी है, गुनाह करता है ना बेवकूफ है. अक्लमंद वही है जो नेकियां करता है और गुनाह से बचता है. जो गुनाह में पड़ा रहता है वो बेवकूफ आदमी होता है. उसको अपने नुकसानों की परवाह ही नहीं है कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो रहा है. वो अपनी दुनिया बनाने में गुनाह कर रहा है, देखने की आंखें बर्बाद हो रही है. जहां जीना नहीं है वहां का फायदा सोचता है और जहां पर मरना नहीं है वहां का नुकसान उठाता है. ये बेवकूफ भी नहीं तो बेवकूफ के सर पर सिंह निकल आते हैं. A person who commits sins, he is foolish. He is not an intelligent person. It doesn't matter how many degrees he possesses and how highly educated he might be. An intelligent person is that who worries about akhirah. Because a person who only worries about this temporary world and forgets about the permanent world after death, he can't be called an intelligent person. यानी ये मैटर ये इसमें बहुत है ना तौबा के लिए, और है डिटेल है, बहुत डिटेल है. तो क्या तय क्या हुआ? So what have we decided? जब वो है कि हम ना सुधरे ना सुधरेंगे कसम खाई है. So you're one of those people who have declared that I will never reform and I have vowed for that and I'll stay bad always. So who are you? صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه